Jai Hind students. So today we are going to start the exercise 6.5 problem third. First and second problem I did in my last lecture where introduction was there of maxima minima. I made two videos of introduction, part 1, part 2. Before you go for this exercise, just watch that two videos very carefully. There I taught you about first order derivative, second order derivative, absolute maxima, absolute minima, how it works and all. Now problem third. What is problem third? Problem third is find the local maxima, or you can say that maxima, and local minima if any of the following function. Also find the local maximum and local minimum value in all the cases. So you can say local maxima or you can say maxima. You can say local minima or you can say minima. There is no difference between these two. Okay, now come to first part. F of x is equal to x square. So second order derivative test is more easier than first order derivative test. So we will use that second order derivative test. Fx is equal to x square. So in second order derivative, first we have to find what? F dash x. That is 2x. Then put f dash x is equal to 0. So 2x is equal to 0, therefore x is equal to 0. This is called critical point or extreme point. Now find out second order derivative f double dash x, that is equal to 2. कितना आ गया? 2. Now we have to check this f double dash x at x is equal to जो भी critical point होता है, so इसकी value 2 ही रहेगी because there is no x with 2. Now this is greater than 0. जब f double dash x greater than 0 हो जाता है, so I taught you कि that it has local minimum value. कितनी है? इस पे ये क्या बनाएगा? लोकल मिनिमम वैल्यू. अगर ग्रेटर देन है, उल्टा होता है. सो नाउ आई हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑल्सो. तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं? जिस पॉइंट पर ये लोकल मिनिमम बना रहा है उस पॉइंट को फंक्शन में पुट करते हैं. सो एफ ऑफ यहां पे एक्स की वैल्यू 0, तो आंसर इज 0. So minimum value is equal to 0. Come to second part now, gx. Okay, so g again find out first order derivative 3x का square minus 3. Then put g dash x is equal to 0. 3x square minus 3 equal to 0. 3 कॉमन आ गया. x square equal to 1. x is equal to plus minus 1. Now two critical points are there. One is plus and one is minus. It implies you can say right here plus 1 and minus 1. Now find out second order derivative g double dash x, that is 6x. Now turn by 10 we will put the value of x and we will check this x whether it will make local minimum or maximum. So g double dash x when x is equal to plus 1, तो आंसर is 6 greater than 0. So अगर greater than 0 है तो ये क्या बनाएगा? It has local minimum value. It has local minimum value. और minimum value के लिए क्या करना पड़ेगा? We have to put this x equal to 1 in function. Minimum value is equal to f of
x इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1 यहां पुट करेंगे, 1 का क्यूब -3 -2. नाउ सेकेंड पॉइंट पे चेक होगी, व्हेन x इज इक्वल टू -1, g डबल डैश x इज इक्वल टू -1, देन ये आ जाएगा -6, जो क्या है, लेस देन 0 है, तो इट हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, लोकल maximum value. And to find out maximum value, what to do? We will put क्या, g of, इसमें पुट करेंगे, सॉरी यहां f नहीं g लिखना है, g of x is equal to -1 फंक्शन में, what will be your answer? -1 का क्यूब -1, x के साथ -1 से मल्टीप्लाई +3 equal to 2. So minimum value -2, maximum value 2. Pause the video to note down these two parts. I hope you understood well. Now part third and part fourth, both are same. The difference is of sign, and this x belongs to first quadrant and this x belongs to from 0 to 2 pi, yani complete circle. Now we will see first of all find out the derivative, first order derivative, sin का cos x, cos का minus sin x, okay, then put h dash x is equal to 0, cos x minus sin x is equal to 0, it means sin x equal to cos x, और इसको डिवाइड में लाते हैं तो ये आ जाएगा sin x अपॉन cos x, और ये क्या बच जाएगा 1. दिस इज tan x इज इक्वल टू 1. सो 0 to π/2 पे tan x की वैल्यू 1 कब होती है, when x इज इक्वल टू π/4. नाउ वी हैव टू चेक नाउ अगेन फाइंड आउट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट, सो दैट वी विल चेक x इज इक्वल टू π/4 इन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो h डबल डैश x cos का माइनस साइन x, साइन का cos x. ओके, नाउ चेक है h डबल डैश x, इसकी वैल्यू चेक करते हैं तो क्या आ जाएगी, एट x इज इक्वल टू π/4 माइनस साइन π/4 माइनस cos π/4. सो इट विल बिकम कितनी आ गई, -1 अपॉन √2, -1 अपॉन √2, दिस इज -2 अपॉन √2, दिस इज -√2, दिस इज लेस देन 0. इट मींस अगर h डबल डैश x पॉइंट पे लेस देन 0 आ गया तो ये बनाएगा इट हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू. लेस देन है तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन है तो मिनिमम. नाउ वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, तो वो कितनी बनेगी, फंक्शन में पुट करेंगे h ऑफ x इज इक्वल टू π/4, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन π/4 प्लस कॉस π/4, 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2, कितना आ गया 2 अपॉन √2, दैट इज √2. So this is your maximum value. Now come to this part, fourth part. It is also same. f सबसे पहले हम निकालेंगे f डैश x, साइन का करेंगे cos x, cos का करेंगे माइनस साइन. पुट f dash x is equal to 0, then cos x plus sin x is equal to 0. इसको उधर ले जाते हैं, सेम प्रोसीजर वी विल फॉलो, माइनस cos x, इसको नीचे लाते हैं, sin x अपॉन cos x is equal to -1. It means tan x is equal to -1.
नाउ लिसन वेरी केयरफुली, 0 to 2 पाई में 10x माइनस 1 यानी नेगेटिव कब होता है? 0 to 2 पाई में जो 10 होता है वो नेगेटिव कब होता है? इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल स्कूल टू कॉलेज। इसमें और इसमें ये क्या रहता है? पॉजिटिव। सो इट मींस -1 जो वैल्यू आएगी, जो हमें एंगल निकालना है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नाउ हाउ टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द वैल्यू इन द सेकंड क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये है 1 है 45, सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे पहुंचना है तो 90 प्लस 45 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 135। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 135? क्या लिखते हैं 135 को? कैसे लिखेंगे? इस फॉर्म में, थर्ड आई थिंक 3 पाई बाय 4 यही लिखते हैं, 45 मल्टीप्लाई 3 135। सो पहली वैल्यू x की कितनी आ गई? 3 पाई बाय 4। नाउ सेकेंड, फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू ढूंढनी है हमें। सो ये हमारे पास 45 है, ये 90, देन 90, 180 के बाद वैल्यू आएगी, क्रॉस करेंगे तो 180 में क्या प्लस कर दो? 45, 5 1 225। जो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी? सॉरी, ये 270 है, उल्टा कर देते हैं, 360 में से 45 माइनस कर दो तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 315। यहां पे वैल्यू लाए 90 प्लस किया, 1 आ गया, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में जाना था, इस क्वाड्रेंट में जाना है, 360 में से ये माइनस कर दो, वी विल रीच टू दिस क्वाड्रेंट। सो इसमें जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 315। एंड 315 को कैसे लिखा जा सकता है? 7 पाई बाय 4। अब देख सकते हैं 45, 7 5 जा 35, 7 4 28, 29 30, 31, तो ये आ जाएगा 7 पाई अपॉन 4। नाउ अब बात करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। सो सेकंड ऑर्डर क्या होगा? f डबल डैश एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, साइन का कॉस एक्स। नाउ चेक, x इज इक्वल टू कितना? सबसे पहले 3 पाई बाय 4, चेक है, माइनस साइन 3 पाई बाय 4 प्लस कॉस 3 पाई बाय 4। नाउ 3 पाई बाय 4, ये देखो कंसेक्यूटिव टर्म है, इसको कैसे लिखा जा सकता है? साइन पाई माइनस पाई बाय 4 कॉस पाई माइनस पाई बाय 4। ध्यान से देखें, 11th क्लास में एक कॉन्सेप्ट है कंसेक्यूटिव टर्म्स का, अगर ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, कंसेक्यूटिव टर्म मींस एक के बाद एक, तो वी विल पुट माइनस, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है तो वी विल पुट प्लस। अब साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस तो ऑलरेडी बाहर है, साइन पाई बाय 4, कॉस 180 माइनस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, सो माइनस कॉस पाई बाय 4, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस, तो ये आ गया माइनस 1 अपॉन रूट 2, माइनस 1 अपॉन रूट 2, दैट इज माइनस 2 अपॉन रूट 2, तो ये माइनस रूट 2 आ गया। This is the value of this at x is equal to 3 pi by 4. Pause the video to note down. Now we will check on 7 pi by 4. चलो 7 pi by 4 पे चेक करते हैं पहले। तो फंक्शन x is equal to 7 pi by 4. So f डबल डैश x कितना है? ये है माइनस साइन x प्लस कॉस x. So minus sin 7 pi by 4 plus cos 7 pi by 4. So ये आ गया माइनस साइन। अब इस टर्म को कैसे लिखा जा सकता है? ध्यान से देखें, देखो यहां पे ये 7 pi by 4, इसका मतलब है 315। दिस इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट,
है ये 45 ही, दिस इज पाई बाय 4, आप पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं इसको, बट ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, सो यू कैन राइट माइनस पाई बाय 4, और आप इस माइनस को बाहर भी लिख सकते थे, एक माइनस बाहर था, एक माइनस ये हो गया, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, प्लस अगेन दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और कॉस भी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज पॉजिटिव होता है, सो इसमें क्या लिखा जाएगा, कॉस पाई बाय 4. नाउ साइन पाई बाय 4 1 अपॉन रूट 2, कॉस पाई बाय 4 1 अपॉन रूट 2, दिस इज रूट 2, ये आ गया ग्रेटर देन 0, एंड दिस वन इज लेस देन 0. तो जब लेस देन है तो इट हैज लोकल मैक्सिमा एंड इट हैज लोकल मिनिमम और उसके पास मैक्सिमम. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. सो मैक्सिमम वैल्यू किस चीज पे, किस पे मैक्सिमम बनाएगा वो, x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4, x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4. तो f ऑफ 3 पाई बाय 4 फंक्शन में पुट करते हैं. फंक्शन क्या था, साइन x माइनस कॉस x, साइन x माइनस कॉस x, यानी साइन 3 पाई बाय 4 माइनस कॉस 3 पाई बाय 4. अल्टीमेटली में ये है क्या, ये है तो पाई बाय 4 ही, यानी 45 डिग्री है, बस हर क्वाड्रेंट में चेंज हो रहा है. नेक्स्ट, साइन 3 पाई बाय 4 का मतलब कितना हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट. साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है. साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है. तो अगर ये पॉजिटिव होता है तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 पे वैल्यू होगी वही सेकंड क्वाड्रेंट में 135 पे वैल्यू होगी. तो ये आ गया 1 अपॉन रूट 2. अगेन कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी उसमें माइनस साइन लगा दो. फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू कितनी है इसकी, 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कितनी आ जाएगी, माइनस 1 अपॉन अंडर 2. तो ये माइनस है तो ये प्लस हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 2, और आंसर आ गया 2 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू अंडर रूट. दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू. नाउ सेकंड पार्ट इसी का, जिसमें वी हैव टू फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड मिनिमम वैल्यू. अब मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, वही x इज इक्वल टू कितना था, x इज इक्वल टू हमारे पास जो फैक्टर बने थे वो एक 3 सेकंड फैक्टर बना था 7 पाई बाय 4, x की जो वैल्यू बनी थी. नाउ f ऑफ x इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4 पुट करेंगे फंक्शन में, साइन 7 पाई बाय 4 माइनस कॉस 7 पाई बाय 4. अगेन दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट 315, यानी वैल्यू पाई बाय 4 की ही चल रही है. दिस ओनली डिपेंड कि कौन से क्वाड्रेंट में है, जस्ट आपको साइन लगाना है. वैल्यू पाई बाय 4 की ही लिखनी है, क्योंकि 7 पाई बाय 4 मींस पाई बाय 4. साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सो पाई बाय 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती है, बट ड्यू टू दिस इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस 1 अपॉन रूट 2. देन माइनस कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 minus 2 upon root 2, this is minus root 2. So this is your minimum value. Minimum value कितनी आ गई, minus root. So like this you can solve the questions. Pause the video to note down. Now come to fifth part. First of all, f dash x 3x का square minus 12x plus 9. Okay, put f dash x is equal to 0. तो ये 3 कॉमन आ गया, x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0. फाइंड आउट द फैक्टर x स्क्वेयर, मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए, प्लस माइनस करके माइनस 4 आना चाहिए. इट्स वेरी सिंपल. 3 x कॉमन,
x माइनस 3, -1 x माइनस 3. तो फैक्टर्स आर, x की क्या वैल्यू आ गई, एक 1 एंड द सेकेंड वन इज 3. नाउ फाइंड आउट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव f डबल डैश x, दैट इज इक्वल टू 6x minus 12. Now f double dash x at x is equal to 1. तो 6 minus 12 minus 6 less than 0. f double dash x is equal to 3. 3 पुट करेंगे, 18 minus 12 6 greater than 0. इस पे क्या बनाएगा, लोकल लेस देन 0 है मैक्सिमा, और इस पे लोकल मिनिमा. नाउ फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू. सो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ, किस पे मैक्सिमम बनेगी, 1 पे पुट कर दो. x इज इक्वल टू 1 फंक्शन में 1 का क्यूब 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, 50, 9 प्लस 1 10, 25 माइनस 6 19. मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ x इज इक्वल टू 3 पर देखते हैं. 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 6 60, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 प्लस 9 3 जा 27 प्लस 15. ओके, नाउ 27 ये कितना होता है, ये होता है 54. 3 पे वैल्यू ध्यान से दोबारा से देखें. 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 जा 54, 9 3 जा 27 प्लस 15. तो ये दोनों मिलके ये कैंसिल हो गया, आ गया 15. सो मिनिमम वैल्यू कितनी बनाई इसने, 15 बनाई. नाउ कम टू दिस gx. gx क्या कहता है, g ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन x. x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होनी चाहिए. फाइंड आउट g डैश x. ये आ गया 1 अपॉन 2, 2 कांस्टेंट है, 1 अपॉन x की क्या होती है, माइनस 2 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर. सो 2 ऑलरेडी है तो माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर. पुट g डैश x इज इक्वल टू 0. आई होप यू अंडरस्टूड कि फ्रॉम वेयर आई रिटन दिस. इसकी ddx करेंगे, इसकी तो ये ऊपर गया, अब इसकी ddx होगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 डाउन पावर में एक कम हुआ, सो आई कैन राइट लाइक दिस. ओके, नाउ g डैश x इज इक्वल टू 0. तो 1/2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0, माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, x is equal to plus minus 2, but the value of x should be greater than 0. So हम कौन सी वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट x is equal to minus 2. So x की क्या वैल्यू आ गई, 2. Now we have to check on this 2. f double dash x यानी g double dash x. तो निकालते हैं g double dash x. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये 0 हो गया, ये है -2 अपॉन एक्स स्क्वेयर. कॉन्स्टेंट को छोड़ देते हैं, माइनस को छोड़ देते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर को ddx करते हैं, पावर को ऊपर ले जाता हूं. अब इसका ddx करता हूं तो पावर नीचे, पावर में एक कम, सो -2 अपॉन एक्स क्यूब. ये -2 ऑलरेडी था और -2 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये कितना बन गया, 4 अपॉन एक्स क्यूब. नाउ चेक
g डबल डैश x एट x इज इक्वल टू 2। सो ये आ गया 4 अपॉन 2 का क्यूब कितना होता है 8, यानी 1/2 ग्रेटर देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या बनाएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी इसकी, मिनिमम वैल्यू इज एट x इज इक्वल टू 2। तो g ऑफ x इज इक्वल टू 2 क्या आ गया, 2/2 प्लस 2/2 दैट इज 2। 2/2 प्लस 2/2 1 प्लस 1 दैट इज 2। दिस इज योर मिनिमम वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये क्या आ गया था, ग्रेटर देन 0, तो उल्टा हो जाता है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नाउ g of x is equal to 1 upon x square plus 2. Seventh part of this question, problem 3. Actually problem 3 is having 8 parts. So सबसे पहले वही g dash x, तो या तो हम इसको ऊपर ले जाएं, जैसे क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है -1, तो पावर को नीचे लाए, ध्यान से देखो पावर नीचे आई, पावर में एक कम हो गया -2, इसको मैं ऊपर ले गया, क्योंकि जब कांस्टेंट होता है तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं। अदरवाइज यू कैन यूज u अपॉन v फॉर्मूला ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो सेम, आप कोई भी लगा सकते हैं, ये थोड़ा इजी पड़ेगा। पावर नीचे आई, पावर में एक कम हो गया तो -2। अब पावर का हुआ, अब फंक्शन का, तो x स्क्वायर का करेंगे 2x, 2 का करेंगे 0। नाउ -2x इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं टू मेक द पावर पॉजिटिव। सो इट्स वेरी सिंपल। नाउ पुट g डैश x इज इक्वल टू 0, तो -2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, x की वैल्यू 0 आ गई। नाउ फाइंड आउट g डबल डैश x। Here you can use u upon v formula because ऊपर भी x है, वेरिएबल है। सो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर आना था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर है दिस, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बाहर माइनस साइन पहले ही लिख लेते हैं जो इसके साथ माइनस है, तो g डबल डैश x माइनस डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देन n अपॉन v का n अपॉन d का फॉर्मूला लगा रहे हैं, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर एज इट इज ddx ऑफ न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर की ddx क्या होगी, ये 2x है, माइनस ऑलरेडी हमने बाहर लिखा हुआ है, 2x का 2, ओके, देन माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज यानी 2x, डिनोमिनेटर की करेंगे तो सबसे पहले पावर डाउन हुई और पावर में एक कम हो गया, तो 2 पावर थी 1 रहेगी। अब फंक्शन की, तो ये आ गया 2x। नो नीड टू सॉल्व दिस वन, इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट पुट दिस वैल्यू, जो x की वैल्यू आपके पास आई थी, क्रिटिकल पॉइंट आया था, उस पर वैल्यू चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 माइनस, इसमें पुट करेंगे तो ये बना 0 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 इंटू 2, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x मल्टीप्लाई में है, नो नीड टू राइट एनीथिंग। नीचे x स्क्वायर को 0, x की वैल्यू 0 आ गई, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, सो 4 2 8, सो ये आ गया -1/2, दैट इज लेस देन 0। सो सिंपल, सो माइनस, सो नो नीड टू सॉल्व दिस वन, जस्ट डायरेक्टली पुट द वैल्यू, क्योंकि वी हैव टू फाइंड ओनली दिस साइन, हमें तो ये साइन ही फाइंड आउट करना है। ऑलरेडी माइनस बाहर लगा हुआ था और ये लेस देन 0 आ गया, तो ये क्या शो करेगा, इट हैज लोकल मैक्सिमम।
वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फंक्शन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी एफ नहीं जी है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1/2। दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि अगर लेस देन है तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन है तो मिनिमम। नाउ कम टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ, यहां से ऐसे कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वही एफ डैश एक्स फाइंड आउट, तो यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज सिंपलेस्ट वे, वही लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। सेकंड फंक्शन की करेंगे तो पावर डाउन हुई, पावर में एक माइनस हुआ, और फिर फंक्शन की दोबारा से, तो 1 की 0 माइनस एक्स की -1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एक्स की करेंगे 0। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया देखें, -x/2 √1 माइनस एक्स, माइनस बाहर, इसको पॉजिटिव बनाया नीचे ले आए, प्लस 1 माइनस एक्स। ओके, whether you can take LCM or whether you can leave as it is, but if you will take LCM that is more convenient to you, f dash x, LCM आ गया 2 √1 माइनस x प्लस 2 मल्टीप्लाई होंगे 1 माइनस x प्लस 2 माइनस x 2 1 माइनस x, तो ये बन गया, सॉरी 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 2x, ये बन गया -3x प्लस 2/2 √1 माइनस x। दिस इज f डैश x। नाउ पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा, हमारे पास जो वैल्यू आएगी x की, वो क्या आएगी? वैल्यू आ जाएगी -3x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। -3x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 2/3। नाउ वी हैव टू फाइंड द डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टू चेक वेदर इट शोज मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। नाउ f डबल डैश x, इसको अगेन डिनोमिनेटर का स्क्वायर 4 1 माइनस x, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का करेंगे -3 माइनस, न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का करेंगे तो 2 एज इट इज, इसका करेंगे अगेन जैसे हमने यहां किया था, इसका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/2 और 1 माइनस एक्स की पावर -1/2, 1 माइनस एक्स की पावर -1/2, ये कैंसिल आउट हो गया। व्हाट इज लेफ्ट विद अस? f डबल डैश एक्स, 3 2 -6 1 माइनस एक्स, ये माइनस बाहर ही रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे मल्टीप्लाई, या इसको डिवाइड में लिख लेते हैं, √1 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में 4 1 माइनस एक्स। वेदर यू कैन टेक द एलसीएम, क्योंकि यहां पे x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 2/3, तो इट्स बेटर टू टेक द एलसीएम। कम दिस साइड, नाउ वी विल टेक द एलसीएम फर्स्ट, और हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी वो देखते हैं। सो f डबल डैश एक्स, एलसीएम कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया -6 1 माइनस एक्स, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस अंदर ले जाते हैं तो ये +3x -2 अपॉन 4 1 माइनस एक्स की पावर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, बेस सेम होते हैं, पावर ऐड हो जाती है। f डबल डैश एक्स -6
plus 6x plus 3x minus 2 upon 4 1 minus x की पावर 3 by 2. It implies कितना आ गया 9x minus 8 upon 4 1 minus x की पावर 3 by 2. Check when x is equal to 2 by 3. जब x की वैल्यू कितनी है 2 by 3. चेक करते हैं 9 इंटू 2 अपॉन 3 माइनस 8 4 1 माइनस 2 अपॉन 3 3 बाय 3 3 जा 9 3 2 जा 6 6 माइनस 8 अपॉन 4 एलसीएम लेंगे 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1 1 अपॉन 3 की पावर 3 बाय 2. सो ये आ गया हमारे पास 2 अपॉन 4 1 बाय 3 की पावर 3 बाय 2. सो 1 अपॉन 2 1 बाय 3 की पावर 3 बाय. सो दिस इज ए पॉजिटिव नंबर. सो ये हमारी इससे हमें ये पता लग गया कि ये वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन 0. सॉरी 6 माइनस 2 क्या होता है -2. सो ये माइनस आएगा तो इट इज लेस देन 0. सो इट has local maximum value. अब मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं. मैक्सिमम वैल्यू कहां से आएगी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास f ऑफ x में पुट करने से. सो f ऑफ x इज इक्वल टू 2 by 3 दैट इज इक्वल टू 2 by 3 अंडर रूट 1 माइनस 2 by 3 2 by 3 अंडर रूट 3 1 अपॉन 3. सो ये बन गया 2 अपॉन 3 अंडर रूट 3. सो दिस इज योर सॉल्यूशन. पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. हो गया एक ही क्वेश्चन हुआ पर इसमें प्रॉब्लम थर्ड नहीं ये तो पूरा हो गया. चलो मैं फिर फाइनल कंक्लूड कर देता हूं. Solve this problem third because it has 1 to 8. 8 parts are there in this question. So in this lecture we only covered this problem third. Understand well and still I hope कि I tried this to make more easier to you. Understand well and if you face any kind of difficulty then you can write in the comment box. And those who are new to the channel, subscribe this channel. Press the like button and press the bell icon also. Till that, Jai Hind.